Hello students, welcome to the class today. So we are carrying on with chapter 4, Working of Institutions, Political Science. Um, Institutions are set up for the common people. In democracy, please understand, हम इतने दिन से, from last 4 or 5 days, we have started this chapter where we are talking about institutions, what we have read till now, what we have understood till now, and what we have studied till now. According to that, we understand that these institutions are made and are functioning for the benefit of the common people. Dear children, it is democracy. So in democracy, the major thing that matters, the thing that needs to be taken care of is common people. Because what is the definition of democracy? It is a government that is formed to the people, for the people and by the people. ठीक है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा एंड लोगों की भलाई के लिए. Okay, so if we are talking of that, where the common people are the most important ones, where the common people are playing such an important role that everything revolves in and around the common people. So we need to understand how the goals are to be fulfilled. कैसे लोगों की भलाई की जाएगी, ऐसी क्या चीजें हैं, what are the things that needs to be practiced to benefit the common people. आम आदमी की भलाई, आम आदमी की सोच और आम आदमी का तरीका, इन सब चीजों को कैसे पालन करना है. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, जिसमें आम आदमी की भलाई के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल, for the benefit of the common man, we have seen what all steps were taken. क्या क्या नहीं किया गया. ठीक है, what all things have been done and how it has been done. We have seen this and we have understood this. Got it? So what we need to understand here, अब हमको यहाँ पे क्या समझना है कि हमने देखा that the benefit of the common man is important, the views of the people are important, and the service of the leaders is important. To whom are they serving? किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों इतना काम कर रहे हैं. तो उसमें हमको पता चला, we came to know about the role of the prime minister, cabinet ministers, parliament. Abhi last discussion that we had so much of discussion on parliament. We also discussed about the Lok Sabha and the Rajya Sabha. लोक सभा के क्या फंक्शंस हैं, राज्य सभा के क्या फंक्शंस हैं. लोक सभा इंपॉर्टेंट है कि राज्य सभा इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट तो दोनों है, बोथ ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन लोकसभा इज द हाउस ऑफ कॉमन्स. ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमन्स, कॉमन हम और आप. तो जब कॉमन आदमी की इतनी बातें कर रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि कॉमन आदमी का रोल क्या है इस गवर्नमेंट में. What is the role of the common people in forming the government, running the government? Okay? And whatever is required by the common people, जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, एक आम आदमी की जो जरूरत होती है, उसको जो लोग पूरी करते हैं, the people who are looking after the needs of the common man, जिन्होंने कि उनको लीडर बनाया है, such people are called as, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा माय डियर चिल्ड्रन, एग्जीक्यूटिव. ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स पढ़ा हमने, और पहला जो हमने पढ़ा, दे वेयर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल, इलेक्शंस के बाद जो लोग पावर में आए हैं,
the leaders who have been elected by the common people, and those who are carrying on the work and carrying on the functions in the benefit and for the benefit of the common people are called as executives. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स इलेक्शंस के बाद उनको चुना गया है इस काम के लिए. सो दे आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, गॉट इट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन. एक वर्ड यहां पे हमने पढ़ा था जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप देख लेना. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब, नहीं, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स एंड लॉ. इनको ये देखना है कि इनके द्वारा इन्होंने जो काम निकाला है या इन्होंने जो चीज बताई है, जो काम बताया है, वो काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. They are the ones who are executing the policy decision taken by someone else. ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं. प्राइम मिनिस्टर ने मेमोरेंडम पास नहीं किया था. प्राइम मिनिस्टर had discussed it in the parliament. Decision was taken by parliament. Decision was jointly taken by the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Then it was finalized by the parliament. फिर उसका ऑर्डर निकाला, फिर उसको ऑर्डर दिया प्राइम मिनिस्टर ने. प्राइम मिनिस्टर हैव अप्रूव्ड ऑफ इट एंड देन इट वेंट टू द person who had signed that office memorandum, who had signed that government order, who has signed that government office order, and then has come up with in the for the common public. Okay, so they are the ones who are responsible for executing the decisions. That's why they are called as executives, क्योंकि they are executing, they are responsible for execution. पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया, गवर्नमेंट कोई एक आदमी तो है नहीं. देयर इज नो वन पर्सन हु कैन बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट. सो मेनी पीपल आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो पहले फर्स्ट स्टेज, फिर सेकेंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, different people are there who are responsible for taking decision and passing orders. Got it? तो यही चीज हम जो है इसको डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. सो तो जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, सो व्हेन वी से गवर्नमेंट, हम जो गवर्नमेंट हमने कहा, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है, गवर्नमेंट. सो दैट मीन्स we are talking about executives. यही एग्जीक्यूटिव हैं जो कि गवर्नमेंट बना रहे हैं. These are the executives who are forming the government, who are understanding how the government will run. Okay? तो इसमें एक तो हो गए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. नाउ द नेक्स्ट we are talking about पॉलिटिकल जो होता है ना. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पॉलिटिकल आर लेस इंपॉर्टेंट, बट एंड वन मोर कैटेगरी इज देयर, दैट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव. प्लीज अंडरस्टैंड, परमानेंट एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो हमने पढ़ लिया, हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन. अभी परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्री, विच एवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो भी कंट्री कहती है कि इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, टू कैटेगरीज आर देयर इन एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में देयर आर टू कैटेगरीज. कौन कौन सी है? एक तो वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल,
ठीक है, अब इसको ऐसा करते हैं ना, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना, वहीं पे पॉइंट लिखते रहेंगे। तो इसको ऐसे कर देते हैं। पॉलिटिकल में सबसे पहला क्या होता है, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, हम उनको इलेक्ट करते हैं, तब वो वहां पे जाके बैठते हैं पार्लियामेंट में। ओके, इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल। इलेक्शंस हुए, आफ्टर इलेक्शंस द लीडर्स हु हैव वन आर गोइंग एंड सिटिंग देयर। पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव्स एंड हमेशा के लिए बैठेंगे, जिंदगी भर के लिए वहां पे बैठ सकते हैं? नो, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्या है वो टाइम? 5 years ओनली। ओके, एंड elected by common people for a specific period, कुछ समय के लिए, for a specific period। हमेशा के लिए अगर हो जाए तब तो फिर क्या होगा, ये फिर क्या होगा ना, फिर these people will not become the leaders, they will consider themselves as God, कि इलेक्ट हो गए हैं एंड गवर्नमेंट बना ली है, अब पूरे टाइम वहीं पे रहेंगे। ऐसा नहीं होता है, it doesn't happen like that. Lot of things are there, lot of decisions are there that needs to be understood, जिसको कि समझना बहुत जरूरी है। ओके, एंड they are making big decisions। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें डिसाइड करते हैं। ये दिस इज देयर, एक ऑफिस में अगर रैंडम से समझ में आ गया, मतलब they have introduced reservations, 27% reservations for SCBC, कोई नहीं कर सकता है। It is only this political executives they can do it. Okay, so for a specific period यहां पे मैं डाल देती हूं for 5 years। Got it? फिर क्या होता है कि हाँ, they take big decisions, बड़े बड़े कारनामे करते हैं ये लोग। Okay, political executives, please understand। Now what happens कि permanent executives कौन है? They are appointed on a long term basis। ठीक है, appointed on a long term basis, लंबे समय के लिए। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आएंगे चले जाएंगे, बट परमानेंस के साथ ऐसा नहीं है। एक बार ये अपॉइंट हो गए एज एन IAS ऑफिसर, सो टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द पर्सन इज एन IAS ऑफिसर, द पर्सन रिमेन्स एज एन एग्जीक्यूटिव टिल हिज रिटायरमेंट। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट द पर्सन इज, कितना इंपॉर्टेंस है इनका। आई एम टॉकिंग ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। 5 साल के बाद जब ये चले जाएंगे, 1 PM हैज गॉन एंड द नेक्स्ट PM कम्स, तो उनको सारी चीजें कौन बताएगा? इट इज द परमानेंट पीपल हु टेल देम कि पहले के जो PM थे उन्होंने ये चीजें ऐसे ऐसे की हैं। somebody should be there to tell ना कि पहले क्या हुआ है और आगे क्या करना है। suggestions are there, they are more experienced। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये लोग यहीं के यहीं बने हुए हैं। these people are coming and going। are you understanding? So the difference is big। and appointed on a long term and working in civil services are called as civil servants। ठीक है, so they are working in civil services, so they are called civil servants। क्या कहते हैं इनको? They are called as civil servants। सर्वेंट का मतलब क्या होता है? या आप सर्वेंट किसको कहोगे? आपके घर में जो नौकर है, द पर्सन हु इज सर्विंग यू डे इन एंड डे आउट, पूरे दिन रात वो आपकी सेवा करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ सर्वेंट। एंड सिविल सर्वेंट्स, IAS ऑफिसर के नाम के आगे लगा हुआ है सिविल सर्वेंट। इज ही अ सर्वेंट? यस माय डियर, ही इज चिल्ड्रन, ही इज अ सर्वेंट।
ही इज द सर्वेंट ऑफ द कॉमन पीपल। कॉमन आदमी की सेवा करने के लिए उनको वो कुर्सी मिली है, बादशाह समझने के लिए नहीं, नॉट टू कंसिडर हिमसेल्फ एज किंग, ही इज नॉट गिवन दैट पोस्ट। ओके, they remain in the post even when the political executives are changing. So they remain in the office even when the ruling party changes. So they remained in the office even when the रूलिंग पार्टी चेंजेस। आई टोल्ड यू, पहले से मैं बता रही हूं, ये लोग हैं आते जाते रहेंगे, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कीप कमिंग एंड गोइंग, बट दे आर देयर, nobody can remove them from their position, and they are working under the political executive and assist them in, ये भाई इनका पोजीशन इनसे नीचे है, and they are working like an assistant to them। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है, दीज पोजिशंस, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में समटाइम्स इट हैपेंस दैट बहुत कम नॉलेज वाले लोग जो है कभी कभी ये वाला पोस्ट पा जाते हैं। चांस की बात होती है, किस्मत की बात होती है। सो व्हेन दे गेट द पोजिशन तो उनको लगता है कि दे आर द किंग्स एंड दे आर द रूलर्स। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट एज सच। हमेशा दे नीड द हेल्प ऑफ दीज सिविल सर्वेंट्स। जितना इनको आम आदमी के बारे में पता है उनका उतना तो शायद इनको भी नहीं पता है, ये इनको खाली भाषण देना आता है। दे नो जस्ट टू गिव द भाषण। गॉट इट? सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, ऑफिसर्स, ओके, these officers work under political executives। इनके अंडर में काम करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंडर में। ओके, एंड असिस्ट देम इन डे टू डे एक्टिविटीज। रोज के रोज कोई डिसीजन लेना है, रोज का रोज कोई पॉलिसी चेंज करना है, तो दे आर द वंस हु आर असिस्टिंग दीज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। Political executives always do not take major decisions. The permanent executives are there जिनका दिमाग इसमें काम करता है। Okay, so these officers work under the political executives and assist them in day-to-day activity। गॉट इट? रोज के रोज कोई कार्रवाई होनी है, उसमें इनको हमेशा इनकी मदद की जरूरत पड़ती है। सो पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज देयर इन द केस ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम। रिमेंबर, अब फिर से हम, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑफिस मेमोरेंडम एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम। बार बार हम ऑफिस मेमोरेंडम का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। The office memorandum that we have discussed in the beginning of the chapter, the whole chapter is based on that office memorandum. That's why the importance of that office memorandum, to understand it, was very important. ठीक है? Political executives have more power. I told you. So have more power than the non-political executives. Then why is the minister more powerful than the civil servant? ये लोग यहाँ पे हमेशा रहते हैं, लेकिन इनको ज्यादा पावर क्यों मिला हुआ है? इन्हीं को ज्यादा पावर मिलना चाहिए। आईएएस ऑफिसर्स को ही क्यों ना हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स बना दें। लेकिन सिविल सर्वेंट क्या होता है, इज मोर एजुकेटेड एंड हैज मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट। सिविल सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर बनना देखो कितना कठिन है, यू नो इट वेरी वेल। इट इज सो डिफिकल्ट टू बी एन आईएएस ऑफिसर माय डियर चिल्ड्रन, कितना कठिन है। तो दैट्स वाई, बिकॉज ये जो देश का है होता है, some decisions that are related to the country have to be taken by the political executives, लेकिन आइडिया सारे इनको देने पड़ते हैं, क्योंकि political executives at times it happens कि they cannot think from the common man's point of view।
there are officers, finance minister is there. फाइनेंस मिनिस्टर इज देयर, उनको फाइनेंस के बारे में बहुत कम पता होता है. बट द ऑफिसर्स हु आर देयर इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, हु आर वर्किंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर, हु आर द असिस्टेंट टू द फाइनेंस मिनिस्टर, ये वो लोग होते हैं जो कि आईएएस एग्जाम क्लियर करके सिविल सर्वेंट्स होते हैं. हु हैव आईएएस में देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज. इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज होता है, स्टैटिस्टिक्स मैथ्स का एक डिपार्टमेंट है, तो जो उसको क्लियर करते हैं, दे आर अपॉइंटेड इन दैट फाइनेंस मिनिस्ट्री. उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर को असिस्टेंट दिया जाता है, क्योंकि पूरे देश का फाइनेंस डिसाइड करना है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. तो दे आर द पीपल हु नो मोर अबाउट फाइनेंस इन कंपैरिजन टू द फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्टर के कंपैरिजन में इनको ज्यादा पता होता है. गॉट इट? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. कभी कभी क्या होता है दैट द मिनिस्टर्स में नो वेरी लिटिल अबाउट टेक्निकल मैटर्स. टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं विच द मिनिस्टर्स आर अनअवेयर अबाउट. तो द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर देयर, दे असिस्ट. तो सेम थिंग हैपेंस फॉर डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी. तो व्हाई शुड द मिनिस्टर्स के पास ही सारा पावर क्यों होना चाहिए? हम इन्हीं को जब सारा काम ये लोग कर रहे हैं, देखो, बाय दिस वॉट एवर डिस्कशंस वी आर हैविंग, वी कैन अंडरस्टैंड दैट द मेजर पोर्शन ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय देम. तो इन्हीं को देना चाहिए. लेकिन इसमें क्या होता है कि दिस इज नॉट द अपॉइंटमेंट ऑफ द पीपल. दे हैव बिकम द आईएएस ऑफिसर्स, दे हैव बिकम द एग्जीक्यूटिव्स ऑन देयर ओन. अपनी क्षमता के बल पे ही वो वहां पे पहुंचे हैं. लेकिन ये मिनिस्टर्स जो हैं, इनको हमने चुन के बैठाया है यहाँ पे. दे आर द एग्जीक्यूटिव्स बिकॉज वी हैव चोजन दैम. ओके, एंड मिनिस्टर तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ द पीपल एंड एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ. यहाँ पे वॉट एवर द कॉमन पीपल वॉन्ट्स, दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. लेकिन यहां पे ये लोग, दीज पीपल विल टेक ओनली दैट डिसीजन विच इज गुड फॉर द कंट्री, विच इज गुड फॉर द कॉमन पीपल. दे विल नॉट थिंक अरे भैया हमारी तो वोटिंग हुई है. दे विल नॉट थिंक ऑफ दैट. ऑफिस मेमोरेंडम बनने में भी द पीपल हु हैड असिस्टेड बीपी मंडल, दे वर ऑल आईएएस ऑफिसर्स. पता करना है that they needed to know who are the socially and educationally backward classes. So the very learned people were there who had went and inquired that who are these SCBC. Okay, पहले तो कैटेगरी पता की गई, who are these SCBC, and now how to bring them up. अब इनके लिए क्या किया जाए कि ये डेवलपमेंटल स्ट्रीम में आ जाए? कौन देगा ये सजेशंस? So who had given these suggestions? These permanent executives have given these suggestions. Got it? So that is why minister takes the final decisions, and the ministers decide the overall framework and objectives. Please understand that minister is an elected representative. They are elected representatives. कॉमन आदमी का विल शामिल है उसमें. इलेक्ट किया है हमने उनको, तो उनको जो भी डिसीजन लेना है हमारे फेवर में लेना है. ओके, असिस्टेंट ये लोग हैं, दे कैन डेफिनेटली सजेस्ट. सो मिनिस्टर्स टेक द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स. ये हैं एक्सपर्ट्स, ऑल द मिनिस्टर्स on all matters. लेकिन experts का अलग अलग ओपिनियन होता है. The experts have got different opinion or place before her more than one option. वो बहुत सारी चीजें मिनिस्टर को बता देते हैं कि देखिए अगर आप ऐसा डिसीजन लेंगे तो ये होगा, अगर आप ये सब चीजें डिसाइड करेंगे तो ये होगा. All the major decisions and its consequences, because they are the people who can understand कि अगर ये कर देंगे तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, अगर ये डिसीजन लिया जाएगा तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए. लॉट ऑफ प्रॉस एंड कॉन्स आर देयर. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है.
ये हम और आप नहीं सोच पाते हैं, बट द पीपल हु आर देयर, दे आर एक्सपर्ट्स एंड दे कैन थिंक अबाउट इट. So whatever is the complete process, accordingly the decisions are taken. The experts tell the route. Experts क्या करते हैं? ये these are the experts. Experts ने रास्ता बता दिया. They are the one who will show you the way कि सर आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा. So the route and the consequences डिसीजन मिनिस्टर को लेना है, बिकॉज इनको पता होना चाहिए कि इफ देयर इज सम प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन, सवाल का जवाब इनसे मांगा जाएगा. उस समय दे विल नॉट गिव द आंसर. दे विल से भैया हमने तो बता दिया था, वी हैड ऑलरेडी टोल्ड द मिनिस्टर्स. अभी डिसीजन उन्होंने लिया है तो आप उनसे पूछिए, क्योंकि उनको आपने चुना है. हम तो अपने आप यहाँ पे बैठे हुए हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज द डिफरेंस. वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशन, the political executives and the permanent executives. Got it? This is what Lok Sabha का एक दिन किस तरह का होता है. I just wanted to discuss it with you. I'll just show it to you. Minute by minute, what all work is done. I'll just show you that. Got it, children? Come, let's see. So students, just now we have discussed about the political executives and permanent executives. इनके बारे में हमने बातें की. Now what we are understanding here is कि लोक सभा में the people, I mean MPs go ना, and they sit in the लोक सभा in the parliament. तो जब वो जाके बैठते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का क्या शेड्यूल है. What is the schedule and how the day would be carried forward. क्या क्या चीज़ें होंगी पूरे दिन में. This is one of the very important things. तो ये एक दिन लोकसभा जो है उसका पूरा शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, विच आई वॉन्टेड टू शो यू. दिस शेड्यूल इज ऑफ 7 दिसंबर. पहले तो याद रखना कि यू आर टॉकिंग अबाउट 7 दिसंबर 2004. 14th लोकसभा इज देयर. पूरे दिन में क्या क्या हुआ ये हमको इसमें देखना है. एंड व्हाट आर द रोल्स एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें की गई पूरे दिन. ओके, ये नीचे में दिया हुआ है. इसको हम भी कभी करेंगे, कभी आओगे बेटा तो अभी तो कंडीशन. तो द डे हैड स्टार्टेड एट 11 o'clock. 250 क्वेश्चंस वेयर देयर. उन क्वेश्चंस का आंसर देना था, ये इन्होंने दे दिया. व्हाट इज़ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन मिलिटेंट ग्रुप्स इन कश्मीर. मतलब दीज क्वेश्चंस व्हेन द पीपल हैड कम, जिस समय ये एमपीज आए में पार्लियामेंट में आके बैठे तो उनको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देना था, विच स्टार्टेड एट 11 o'clock. एंड इन क्वेश्चंस का आंसर इन्होंने लिख के दिया. दूसरा क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द फिगर्स ऑफ एट्रॉसिटी अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंक्लूडिंग दोज इन्फ्लिक्टेड बाय द पुलिस. एंड what is the government doing about overpricing of medicines by big company. बिग कंपनीज क्या करते हैं ना, जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होती है ना उसके प्राइसेस बहुत बढ़ा देते हैं. तो उसके लिए व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट. ये सारे क्वेश्चंस थे. 1 घंटे का टाइम मिला था लोगों को. लोगों ने इसको लिख के दिया. इसके बाद 2 o'clock 12 बजे क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वेर प्रेजेंटेड एंड डिस्कशन हुआ. क्या क्या चीज़ों के लिए डिस्कशन हुआ, ऑन व्हाट टॉपिक्स डिस्कशंस हैड हैपेंड. दोज टॉपिक्स आर मेंशन्ड हियर. जस्ट गो थ्रू इट वंस. एंड यू नो जस्ट 2 minutes का, इवन 2 minutes 5 minutes का भी जो शेड्यूल है ना वो भी यहाँ पे मेंशन है. 12:02 पे द मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. Okay, he made a statement regarding revitalization of North Eastern Council. Revitalization मतलब फिर से उसको एनर्जाइज करना है, फिर से उसमें कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी है. ये उन्होंने बताया 12:02 पे. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज प्रेजेंटेड द स्टेटमेंट की नीडेड टू बी सैंक्शन इन द रेलवे बजट. रेलवे बजट में सर्टेन इंक्लूड कर. ओके, 12:14 पे. यू नो मतलब सोचो, मिनट वाइज, सेकेंड वाइज हिसाब किताब रखा जाता है लोकसभा में. ऐसा नहीं है कि कहीं भी कभी भी कुछ भी हो रहा है. इट डजंट हैपन लाइक दैट.
Got it? Lot of details and lot of informations are mentioned here. What the government has to do. 14 page, several members highlighted some issues. What all issues were there? These highlighted issues are mentioned here. Got it? 226 पे बिल्स वेयर प्रपोज. सबसे पहले बिल प्रपोज होता है, उसके बाद ये लॉ बनता है. तो ऑन विच टॉपिक्स द बिल्स वेयर प्रेजेंटेड, दैट इज व्हाट इज मेंशनड हियर, जो कि काफ़ी देर तक चला. 4 o'clock पे देर वॉज अ लॉन्ग डिस्कशन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट पॉलिसी होना चाहिए फॉर द सिचुएशन इन इराक. डिस्कशन 7:17 तक ये चला एंड डिस्कशन कंक्लूडेड. हाउस वॉज एडजर्न फॉर द नेक्स्ट डे. 11 बजे से लेकर 7 बजे तक लोग वहाँ बैठे हुए हैं, डिस्कशंस हो रही हैं. द एक्टिविटीज़ इन द लोकसभा इज़ नॉट दैट सिंपल जितना हम लोग सोचते हैं. इट्स क्वाइट हेक्टिक. गॉट इट चिल्ड्रन? यही था. फर्दर विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.